Good morning, class 11. So today I am going to start with the lecture 3rd of chemical bonding and molecular structure. The first and the foremost topic which I am going to discuss with you, that will be the bond parameter. Before starting with this lecture, first of all, welcome to my channel. It's Brain Chem. If you like the video, please like and subscribe the channel. Now proceeding to the topic, as this is more important than these things. So first of all, we are going to talk about bond parameters, right? So as we will discuss bond parameter, what are these? When we are talking about covalent compounds, okay, in covalent compound there are few characteristics on which the properties of the covalent compound depend. Okay, that will include, I'm going to write here, okay, that will include bond length. This is the factor. Okay, next factor will be bond angle. Okay, the next factor will be bond enthalpy. So these are the three factors which will more define the characteristic of the covalent bond. Okay, the first one is a bond length, next we will discuss bond angle, next we will discuss bond enthalpy. देखिए, as you are in the 11th standard, you have not learned these things earlier till 10th standard. So all these things, the bond parameter, everything is new for you. So please try to understand and grab the concept. Okay, first of all, the bond length. What is in actual the bond length is there? Suppose I'm going to discuss the first one, bond length. Okay, so what is bond length? Okay, so in case of bond length, suppose we are having a nuclei. Okay, it is bonded to another nuclei. That means we are having what? We are having an atom. This is another atom. So यहाँ पे हमारे पास क्या है? In the center we are having nucleus. This atom is also having a nucleus. Now what is the bond length? That distance between. Okay, when you will, this is a nuclei, this is a nucleus, इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. लाइक सपोज ये मान लो Na है और ये Cl है. ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. अच्छा, NaCl में तो आयनिक बॉन्ड होता है. हम यहाँ पे किसी और की बात कर लेते हैं. जब हम कोवलेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, सो हम कुछ किसी ऐसे एलिमेंट की बात कर लेते हैं जिसका बॉन्ड जो NaOH की बात कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस है. व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस था. ठीक है, इतना. दिस इज द रेडियस ऑफ दिस एटम एंड दिस इज द रेडियस ऑफ दिस एटम, राइट? सो व्हेन यू विल मैच दिस रेडियस you will get a distance. When you will calculate the average of this distance, okay, the average will be, कैसे बोलोगे? When you will calculate the average from the center of one nuclei to the center of another nuclei, that is known as a bond length. Okay, suppose we are having the average distance from, this is a element A. Okay, this is the element B. It is having a radius RA, it is having a radius RB. Okay, so the distance from RA to RB, okay, distance from the radius this nucleus to this nucleus is 198 picometer. Okay, picometer units होते हैं. Okay, bond length mostly we usually when we talk about the units of the bond length, usually we measure it in the form of angstrom. Okay, one another angstrom, another we will use the word picometer. Okay, now 1 angstrom A naught, देखिए 1 A naught,
एंगस्ट्रॉम को आपने ए नॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है, इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 meter. Okay, when you will say picometer, then what is that? 1 picometer is equals to 10⁻⁻12 meter. Okay, these are the units in which bond length is measured. Either you can write in meter also, but preferably the bond length is written in angstrom or in the picometer. So when you will say the average distance, अब यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस कितना 198 पिकोमीटर. इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ between these, then you will say 198 divided by 2, that will be approximate equals to 99 picometer. So this is what? This is the bond length. So definition of bond length, please write it carefully. The definition of the bond length will be क्या होगी? The average ही निकाली हमने किसके बीच में? Distance between the centers of the nuclei of the bonded atoms in a molecule. So this is the definition, that the average distance between the center of the two nuclei of the bonded atom. बॉन्ड ही बना हुआ है इसके बीच में, एक मॉलिक्यूल ही बनता है जब बॉन्ड हम बनाते हैं. अगर मैंने बोल दिया NaOH, मैंने बोल दिया वाटर H2O, तो वो एक मॉलिक्यूल ही तो है. सो वो उस मॉलिक्यूल के जो आप उन एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस निकालोगे उसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ. वी मेजर इट इन 2 फॉर्म्स, एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10⁻⁻10 मीटर, एक एंड पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर. तो ये तो हमने बात की जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं एलिमेंट के बीच में, ठीक है. जैसे यहाँ पे हम बात कर लेते हैं HCl की, कि भी इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने एक, क्लोरीन ने शेयर किया, तो एक कोवलेंट बॉन्ड जनरेट हुआ. यहाँ पे हम ऐसे कुछ बात करते हैं ना. अब जब बात करते हैं कि एलिमेंट के बीच में, अब एक हमारे पास और कंसेप्ट होता है बॉन्ड लेंथ में, ठीक है, वो होता है वंडर वॉल. ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट, आपको जानना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, करवा रही हूँ. वंडर वॉल रेडियस. और वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए. दैट वंडर वॉल रेडियस क्या होता है, ये कंसेप्ट था बॉन्ड लेंथ का जब इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, वो बॉन्डेड थे एक दूसरे के साथ. जब हम बात करते हैं वंडर वॉल रेडियस की, इट इज़ प्रेजेंट, listen it carefully, it is present in the molecules of the same atoms, okay, when they are non bonded to each other. okay, ये कब होगा, जब हमारे पास क्या है, लाइक हम बात कर लेते हैं किसी स्ट्रक्चर की. आप कह दो कि आपके पास कोई एक शीट है, एल्युमिनियम की शीट है, ठीक है, एल्युमिनियम की एक शीट है, मैं समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ. वी आर हैविंग एल्युमिनियम शीट. अब यहाँ पे क्या है, व्हेन यू आर हैविंग दैट शीट, तो उस एल्युमिनियम शीट में नंबर ऑफ एटम्स होंगे, लॉट ऑफ एटम, राइट, लॉट ऑफ एटम विल बी देयर. अब उन एटम्स जो होंगे वो आपस में कंबाइन होंगे. ओके, समटाइम अगर हम गैसियस की बात करें तो वो जो एटम्स होते हैं उनमें स्पेसेस ज़्यादा होती है. सो व्हाट विल हैपन इन दोज केसेस, क्या होता है कि जो यहाँ तो शेयरिंग हुई इलेक्ट्रॉन की, इन दोज केसेस व्हाट विल हैपन, एक इंटरैक्शन डेवलप होती है उनके बीच में, ठीक है. अब वो इंटरैक्शन कैसे डेवलप होती है, मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे हम नोबल गैसेस की बात कर लें. नोबल गैसेस कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं ना, आपको पता है कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं. अब जब हम बोलते हैं कि जो एक जिनोन का मॉलिक्यूल है, सपोज करो ये जिनोन का एटम है और ये एक जिनोन का सेकेंड एटम है, ठीक है. अब जिनोन के न्यूक्लियस के सेंटर से, ठीक है,
जिनोन के न्यूक्लियस के सेंटर से टिल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जहाँ पे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, कौन से शेल में भी पड़े हैं, ठीक है, अगर जो भी शेल है उसका, वहाँ तक का जो रेडियस है, कब, जब वो नॉन बॉन्डेड है, उसको हम बोलते हैं वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है। अब ये एक रेडियस आएगा कब, व्हेन एन एटम इज़ नॉन बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मीन्स जिनोन का एक पूरा मॉलिक्यूल पड़ा है, उसमें जो जिनोन के एलिमेंट्स हैं वो नॉन बॉन्डेड हैं, पैक्ड हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, दैट जिनोन दैट विल what it will do, it will form the interactions, okay, with the other xenon molecule। मतलब वॉन्डर वॉल अगर सिंपल सी बात करो, सीधी लैंग्वेज में बात करें तो वॉन्डर वॉल इज़ द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इन विच नो बॉन्ड इज़ देयर, एक वीक इंटरेक्शन है, ठीक है, दैट इज़ नोन एज अ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन। और जो वो रेडियस एग्जिस्ट करता है उन एटम्स के बीच में, वही कि अब क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक वॉन्डर वॉल रेडियस हो गया, ऐसे ही सेकंड का होगा, उसका जो एवरेज तुम लोगे वो होगा वॉन्डर वॉल रेडियस, ठीक है। वॉन्डर वॉल होता है कि इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कोई फोर्स है, कोई इंटरेक्शन है, दैट इज़ एग्जिस्टिंग एंड दैट इज़ नोन एज अ वॉन्डर वॉल इंटरेक्शन, ओके। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि जब हम बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो उसको कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, बॉन्ड लेंथ को कौन कौन से फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। पहला होता है, प्लीज़ याद रखें, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, दैट मीन्स कि जितने ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, ठीक है, उतने ज़्यादा क्या होता जाएगा, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी। लाइक मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ यहाँ पे, व्हेन वी आर हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड अनदर वी आर हैविंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, another we are having carbon carbon triple bond, then if I'll ask which is having the highest bond length, हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ, तो विच इज़ हैविंग द हाइएस्ट बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड इज मोर देन ट्रिपल बॉन्डेड। वाई इट इज़ सो, बिकॉज रीज़न देखिए क्या होगा इसका, यू विल नॉट फाइंड द रीज़न इन द बुक, प्लीज़ लिसन इट केयरफुली, वॉट विल बी द रीज़न ऑफ इट, दैट जब सिंगल बॉन्ड होगा तो इंटरेक्शन जो है एटम्स के बीच में वो क्या होगी, कम होगी, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे बॉन्डिंग बढ़ती जाएगी, एटम्स के बीच में जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से साइज़ जो है बॉन्ड लेंथ का वो डिक्रीज़ होता जाएगा। एंड दैट्स अ कंसेप्ट कि हमेशा याद रखना, सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ हमेशा ज़्यादा होती है डबल से, डबल की ज़्यादा होगी ट्रिपल से, ट्रिपल की ज़्यादा होगी क्वार्टर से, क्वार्टर की ज़्यादा होगी पेंटा से, ठीक है। मोस्टली तो ट्रिपल तक की या ज़्यादा से ज़्यादा 4 बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं, मोस्टली तो 3 ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कार्बन के इसमें तो 3 एग्जिस्ट करते हैं। सो दिस इज़ अबाउट अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। अनदर वन कंसेप्ट आप ले सकते हो, साइज ऑफ एटम, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा, कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, दैट इज़ अ साइज ऑफ एटम। अब एटम का साइज़ कैसे इम्पैक्ट करता है आपको शायद क्लियर हो गया हो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि इंटरेक्शन वीक है जब सिंगल बॉन्ड है, तो ऐसे ही कुछ साइज़ में होगा, जितना बड़ा साइज़ होगा एटम का, ठीक है, उसके से खुद के इलेक्ट्रॉन ही संभाले जाएंगे, तो वो जब वो शेयरिंग की हुई है उसने किसी के साथ, तो वो इलेक्ट्रॉन वो कैसे संभालेगा, सो उतना ही बॉन्ड वीक होगा और डिस्टेंस ज़्यादा होगा। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, HI। अब देखिए हाइड्रोजन जो है एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और आयोडीन एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, दिस इज़ आयोडीन, दिस इज़ हाइड्रोजन। सो जब इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा शेयरिंग के साथ, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड बना जो शेयरिंग के साथ बना, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो वीक होगा, जिसकी वजह से जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो क्या है बॉन्ड लेंथ को भी इंक्रीज़ करेगा। सो ये दो फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर,
दैट विल बी बॉन्ड एंगल। सेकेंड फैक्टर है हमारा ये। अब बॉन्ड एंगल क्या होता है, अगर सीधी लैंग्वेज में बात करें तो एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स। ओके, होगा कैसे, एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। बॉन्ड एंगल में हम बात कर लेते हैं, ये देखिए ये कार्बन है, ठीक है। आज तक सिर्फ आपने पढ़ा है, आपने मीथेन जब भी बनाया आपने कुछ ऐसे बनाया है, लाइक दिस, कुछ ऐसे बनाया हमेशा, है ना। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हमेशा आपने ऐसे बनाया। बट मीथेन इज़ नॉट हैविंग एक्चुअल structure. This is not the actual structure of methane. The actual structure of methane I am going to make with the red marker. ठीक है, the actual structure of methane is, see, like this. When you will see this, तो आप ये देखेंगे कि इसके जो हाइड्रोजन है दे आर प्रेजेंट एट 180 टू ईच अदर, राइट। और यहाँ पे देखिए इसके बीच में 90 का एंगल होगा, बट ऐसा नहीं होता। इट इज़ हैविंग द एंगल दैट इज़ 109 डिग्री 0.8 मिनट्स, इतना एंगल होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड होते हैं कार्बन के साथ। इसके बीच में भी इतना होगा, इसके बीच में भी और इसके बीच में भी। अब बॉन्ड एंगल क्या है देखिए, समझिए यहाँ से, ये सेंट्रल मेटल है, ठीक है, सेंट्रल एटम है, मेटल नहीं सेंट्रल एटम है, ठीक है। सेंट्रल एटम के साथ जब कोई एलिमेंट बॉन्डेड होता है, ठीक है, तो उन एलिमेंट के इन बिटवीन जो एंगल एग्जिस्ट करता है दैट इज़ नोन एज अ बॉन्ड एंगल। I am repeating again, when the elements are sharing their electron, atoms are sharing their electron with the central atom, okay, then when they are sharing the electron, then the angle is existing between the adjacent atoms and that angle is known as a bond angle. ओके, एज हेयर इट इज़ 109.8 मिनट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मैडम ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसका एंगल इतना है। देखिए, आफ्टर दिस लेक्चर वी विल डिस्कस रेजोनेंस, और रेजोनेंस के बाद हमारी थ्योरी आएगी, वेस्पर थ्योरी, फिर हमारा कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन। तो जब वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये एंगल कैसे आते हैं, ठीक है, हमें कैसे पता चलता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसी शेप होगी। सो दोज कंसेप्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, ठीक है, उसके लिए भी टाइम है। सो दिस इज़ अबाउट द बॉन्ड एंगल। ओके, अब इसकी डेफिनेशन की बात कर लें। ओके, सो डेफिनेशन मुझे लग रहा है कि आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अब क्या है, द एवरेज एंगल, ओके, यू विल से द एवरेज एंगल, ओके, किसके बीच में, बिटवीन द orbitals containing bonding electron pairs around the central metal atom, okay, central atom, around the central atom in a molecule. Okay, the average angle between the orbitals containing the average angle between the orbital, ये orbital ही है, containing bonding electron pair around the central atom, that यहाँ पे जो ऑर्बिटल हैं जो इसके साथ बॉन्डेड हैं, ठीक है, अब उसके बीच में जो एंगल है दैट इज़ नोन एज अ बॉन्ड एंगल। अब इसको डायरेक्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझा ही दिया कि जब सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ एलिमेंट्स जब बॉन्डेड होते हैं तो उनके बीच में जो एंगल एग्जिस्ट करता है एडजस्टेंट पोजीशन पे, जब वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनके बीच में कुछ एंगल होता है, सो दैट इज़ नोन एज अ बॉन्ड एंगल, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बॉन्ड एंथैल्पी। सो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, सुना हुआ है आपने, थर्ड यूनिट में भी हमने बात की थी, क्या होता है ये सुना है आपने।
सुना है इसको, देखिए ज़रा, लैटिस एंथैल्पी. ओके, सो बॉन्ड एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी, दे बोथ आर द सेम थिंग्स. अब बॉन्ड एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड. और हम और क्या बोलते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द बॉन्डेड एटम्स इनटू इट्स गैसियस स्टेट. पढ़ चुके हैं आप. सो दैट इज नोन एज अ bond enthalpy. Okay, so this is about the concept of bond parameters. The next thing which I am going to start, that will be resonance. Okay, this is really important. Resonance बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये. रेजोनेंस क्या होता है? फिर सबसे पहले रेजोनेंस कहाँ से आया, क्यों आया, उसकी बात करते हैं. So when we talk about resonance, this concept is given by Heisenberg. Okay, this is given by Heisenberg. He has put forward the concept of resonance. Okay, now how this concept came into his mind, क्या existence थी, क्या representation थी, उसकी बात कर लेते हैं. What is there? This is not an experimental proof. This is just a theoretical concept. Okay, but it is applicable. This is a theoretical concept, but it is applicable. What is there? We are having a structure of ozone, suppose. Okay, actually उसने क्या किया, हमने, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने ओजोन की जो थी, दैट वी हैव मेड द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. Okay, when we have made the Lewis structure of ozone, then we are having like this representation. Two bonds on one side, another bond on this side, and this oxygen is having 3 lone pair and this is having 1 lone pair. इसी की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. यहाँ पे एक बॉन्ड है, और अगर मैं इसको बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, इट इज़ लाइक व्हाट, कैसा रिप्रेजेंटेशन है इसका? ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, और यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रॉन बनाऊँ तो कुछ ऐसे थे, राइट. So accordingly this is having negative charge, this is having positive charge. So here we are having two types of bonds are existing here. One is oxygen double bond, another one is a oxygen single bond when we observe the structure of ozone, right? So oxygen double bond, that is having the bond length, okay, that is 148 picometer. And what about oxygen single bond? It is having the bond length that is 121 picometer. When he was studying the structure of ozone, what his observation shows, that the bond length of oxygen double bond is not 148 picometer, and oxygen single bond is not 121 picometer. ओके, इन एक्चुअल जो ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो इतनी होती है, सिंगल की इतनी होती है. तो इसके अकॉर्डिंग जब हम ओजोन का स्ट्रक्चर स्टडी किया उसने, तो हम भी इसको पढ़ रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो ओजोन की जो स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड की लेंथ इतनी होनी चाहिए थी, सिंगल की इतनी होनी चाहिए थी. बट व्हाट इज़ देयर, हैज़नबर्ग ऑब्जर्व दैट द बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन इज नॉन ऑफ दीज. इन एक्चुअल it is lying in between of it. Okay, the bond length that is lying in between of it, and the bond length here is 128 picometer. See the difference? Okay, not of double bond, not of single bond. Okay, it is of both. Okay, it is not only of this one or not only of this one, it is both. ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों के लिए, मतलब ऑक्सीजन जो थी उसकी जो सेंटर यहाँ इसके साथ बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है, उसकी बॉन्ड लेंथ दैट इज़ 128 पिकोमीटर. इट इज़ रियली अनएक्सपेक्टेड एज द एक्चुअल बॉन्ड लेंथ इज दिस वन.
So to solve this problem, okay, to solve this problem, the alternative structures were drawn, and then they reached to the conclusion. That these bonds are not fixed, okay, they are resonating. Like for 1 second it is here, another second it would be here, another second again it is here. So they are fluctuating. They reach to the conclusion. This is the alternative. And then they have given the concept of resonance. What is resonance? That there is a structure of ozone. When they are studying the structure of ozone is having two types of bond. One is double bond, other one is a single bond. The double bond is having the bond length that is 148 picometer. Single bond should have the bond length 121 picometer, but in actual what they observe, that is not so. It is lying in between of that is 128 picometer. So this structure is not able to explain all the properties of ozone. So they try another alternative. The alternative is that not that the one structure cannot explain all the properties of a molecule. I'm repeating again. One structure cannot explain the properties of molecule. Two or more structures are there. तो हर स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रही है, और उसका हमें एक हाइब्रिड मिल रहा है. ठीक है, जैसे हाइब्रिड एक बीज होता है. सो लाइक दैट कि हमें इन स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड मिल रहा है जो ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं रेजोनेंस. ओके, नाउ मैं अब आपके सामने स्ट्रक्चर बनाती हूँ, देन यू विल बी मोर क्लियर. Like this is a zone. First probability that we are having this structure. Okay, then यहाँ पे एरो जो यूज़ किया जाता है, सी डबल हेडेड एरो. दैट मीन्स दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. ओके, डबल हेडेड एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर सबकी सब ऐसे माना जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इसने एक्सप्लेन की, कुछ है इसने. तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, बाकी लोन पेयर वगैरह वैसे ही रहेंगे. ठीक है, जैसे थे. यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ हो जाएगा दो लोन पेयर. लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ लोन पेयर. सो यहाँ से क्या कंसेप्ट आया कि नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज. सम आर एक्सप्लेन बाय दिस, सम आर एक्सप्लेन बाय दिस. दैट्स वाई अ डबल हेडेड एरो इज़ यूज्ड ओवर हेयर. कि और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो बॉन्ड होते हैं, मोर देन सिंगल, जब भी बॉन्ड प्रेजेंट हो किसी स्ट्रक्चर में, आई एम नॉट सेइंग सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे. हम बात कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की, लाइक जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है. तो उसमें हम ये मानते हैं कि उनके जो बॉन्ड होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं. दे कैन बी, अगर उनके पास सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो दे कैन रेजोनेट, एंड दिस इज़ नोन एज रेजोनेंस. के पहले यहाँ था, सेकेंड टाइम पे ये फ्लक्चुएट कर गया. तो कहते हैं ये एक क्या था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, बट ये एप्लीकेबल हुआ क्योंकि ओवरऑल उन्होंने बोला कि आफ्टर थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसे, थोड़ी सी प्रॉपर्टी इसने एक्सप्लेन की, आफ्टर दैट वी विल गेट अ स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड. ओके, सो दैट वी ड्रॉ लाइक दिस. कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों के पास था, अब जो डबल बॉन्ड था वो फ्लक्चुएट कर रहा था. सो वी विल ड्रॉ डबल बॉन्ड लाइक दिस. Like this. This is what? A resonance hybrid. Okay, this is known as a resonance hybrid. And it shows कि ये डॉटेड क्या शो को रिप्रेजेंट करे कि द सेकेंड बॉन्ड, द डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स, इट इज रेजोनेटिंग, इट इज फ्लक्चुएटिंग. ओके, सो क्या है रेजोनेंस, क्या समझ आया आपको यहाँ से? क्या बोला है हाइजेनबर्ग ने कि जब कोई एक स्ट्रक्चर इज़ नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है O3, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ कोई एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मैं सिर्फ यहाँ पे ओजोन की बात कर रही हूँ, ऐसे ही हम और स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो मैं इन जनरल बात कर लेती हूँ दैट व्हाट इज़ रेजोनेंस, व्हेन वन structure is not able to explain all the properties of a molecule, then more probable structure will be drawn, and each structure represents some of the properties of the molecule, and those, that means it will contribute toward the molecule, and then there will be a resonance hybrid that will is the sum up of the all the resonating structures, and that is known as a resonance hybrid. Okay, and this whole process is known as a resonance. Okay, now we are having some conditions for resonance which I will discuss in the next video. So thank you. पहले आप इतना लर्न करें, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मुझे इनबॉक्स में बताएं, so that I will clear those. Thank you very much.